Good morning, dear students. So today we are to start with a new chapter, that is chemical kinetics, and that is our last chapter from the physical chemistry. Okay, so concentrate on it. You must have prepared all other chapters of physical chemistry. So what is chemical kinetics? If we are talking about chemistry, so basically we discuss about the chemical reactions. So that is all about the kinetics of the chemical reaction. And now you know what is kinetics all about. Kinetics basically talk about the movement. That you know कि kinetics किसके बारे में बात करती है? About the movement. So what movement we are talking about? The chemical reaction. Basically what we know, whenever a chemical reaction takes place, certain reactant species reacts to form the product. So basically in the process, if we are talking about the mechanism, the reacting species collide, and after collision the product is being formed. So that is what? That is colliding is about the movement of the reacting species of the particles to form the product. So basically what we are discuss about in the chapter, we are to discuss about the rate of the reaction. Rate means the speed of the reaction. About the factors that affect the rate of reaction and the mechanism of the reactions by which it get proceed. So basically इन चीज़ों पर हमें इस चैप्टर में बात करनी है, ठीक है, कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ना. Afterward, what are the factors that affect the rate of a particular reaction and what about the mechanism of the reaction. Now let's see in thermodynamics. Thermodynamics में हमने क्या बात की थी? बड़ी important reaction के बारे में बात की थी, about the spontaneity of the reaction. ठीक है कि spontaneous है reaction या non spontaneous है. Spontaneous means that is that feasible, is it happen by its own, is it a spontaneous one. ठीक है. So we discussed about the feasibility of a reaction. ठीक है. And in equilibrium, what we have discussed about that before attaining equilibrium, up to which extent that is spontaneous one. ठीक है ना. तो हमने आगे उसके बाद की chemical equilibrium में. Now these both the chapters, spontaneity को तो बता दिया thermodynamics ने, but it was unable to tell the rate of a particular reaction, that from which rate the reaction is going on. ठीक है. So that we are to discuss about in chemical kinetics. ठीक है. हम बार बार emphasize कर रहे हैं रेट पर. रेट बेसिकली क्या होता है? What is rate? अगर हम रेट की बात करें तो that is about any quantity. रेट किसी भी चीज़ का हो सकता है. वो अलग बात है कि हम यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट इज अबाउट एनी क्वांटिटी, चेंज इन एनी क्वांटिटी. यू में से चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जब हम रेट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. सो चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, is known as its rate. Now as we are discussing about the chemical reaction, तो rate of chemical reaction हमें पढ़ना है. But what kind of chemical reaction we are talking about? So first we have to classify the chemical reaction into three parts. ठीक है. तीन तरीके की chemical reactions होती हैं. The first one that is very fast. पहली कौन सी होती है? अगर हम बात करें classification की, classification of केमिकल रिएक्शन, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन का रेट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शन और थर्ड वन इज रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड. ठीक है. रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड और मॉडरेट रेट. यू में से. सो वेरी फास्ट रिएक्शन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. ठीक है. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन. नाउ व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन? बेसिकली हमें किस केस में देखने के लिए मिलती हैं? आयनिक कंपाउंड्स के केस में. एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम?
We can take the example of NaCl plus AgNO3. ठीक है, what will happen? आपने पढ़ा हुआ है ये तो. So AgCl का white PPT आ जाता है and we are getting NaNO3 that can be filtered out. क्या है रिएक्शन? That is about the ionic compound. क्या हो रहा है यहाँ पर? आयन का एक्सचेंज हो रहा है. दीज आर फॉर्मिंग द एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में जो हमारे आयनिक्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं. हियर नथिंग इज हैपनिंग, द एक्सचेंज ऑफ आयन इज बीइंग टेकन प्लेस. नाउ जब हम काइनेटिक्स की बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने में, बेसिकली क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन वी आर ब्रेकिंग डाउन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, a particular amount of energy is required. ठीक है, and when the new bond is formed, the energy is released. ठीक है, ऐसा होता है, that you know well. but इस केस में तो क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, वो भी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर. यानी यहाँ पर किसी तरीके की कोई जो है ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो ही नहीं रहा. सो ये रिएक्शन क्या हो रही है, विद इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में ये रिएक्शन हो जा रही है. आई गेटिंग इट? कितना? लगभग 10 raised to the power -12 to 10 raised to the power -16. तो क्या हम इसके रेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या हम इसके रेट को विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो, वी वुड नॉट बी एबल टू. हम कर ही नहीं पाएंगे. इतना जल्दी हो रहा है ये रिएक्शन दैट इट इज नॉट पॉसिबल. दैट वी हैव सीन इन लैब ऑल्सो, है ना, देखा है हम लोगों ने. What about very slow reaction? सबसे सिंपल यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं. क्लास 7th से पढ़ते आ रहे हो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन. मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था रस्टिंग ऑफ आयरन के पीछे कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. आपको पता है बहुत स्लो प्रोसेस है. सालों लग जाते हैं रस्टिंग होने के लिए. दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ आवर बिल्डिंग्स ऑल्सो. ठीक है, जहाँ पर हमारा कोई भी आयरन का मटेरियल होता है तो उस पर रस लगने में ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में रस लग गई. नाउ लेट्स सी, क्या आप इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर ऑब्जर्व कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को? इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो हम बहुत फास्ट रिएक्शन को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत स्लो रिएक्शन को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो किसको कर सकते हैं? द रिएक्शन दैट इज गोइंग थ्रू विद अ मॉडरेट रेट. ठीक है, मॉडरेट रेट से जा रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं. यानी बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन दैट गोज थ्रू विद द मॉडरेट रेट. बेसिकली अगर हम एग्जांपल देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, ना इंस्टेंटेनियस है ना वेरी स्लो रिएक्शन है. बेसिकली इस तरीके की है, मॉडरेट स्पीड से जाती है. इसी तरीके से एस्टेरिफिकेशन की आप बात कर सकते हो. हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी ये रिएक्शन, अगर आप लोगों को ध्यान हो. बताती थी मैं बार बार आपको कि यहाँ एसिड का H नहीं है, एसिड का OH है और इसका H है. यहाँ पर कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना. मॉडरेट रेट से ये रिएक्शन जा रही है. CH3COO2H5 प्लस वाटर, है ना. इसी तरीके से आप बात कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, 2NH3 बनाते हैं. ठीक है, सो दीज रिएक्शंस आर बेसिकली द रिएक्शन विद द मॉडरेट स्पीड. तो इन रिएक्शंस की बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड कि हम जो वो ब्रांच कौन सी है ये केमिस्ट्री की, वो ब्रांच जहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन से डील करते हैं, फैक्टर्स से डील करते हैं, मैकेनिज्म से डील करते हैं. ठीक है, रेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेट आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन हमने देख लिया और हमें कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़नी है ये हम लोगों ने नोटिस कर लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में से रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे. अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम रेट की बात कर रहे थे ना, तो rate is change in any quantity with respect to time. And when we are talking about rate of a reaction, it means हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम जब rate की बात करें, it means we are talking about speed. Speed with respect to time. Change in speed with respect to time. ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए हम किसी व्हीकल की बात करें, किसी व्हीकल की स्पीड की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है ना। सो इट मीन्स द चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद इन द चेंज इन टाइम यू में से, ठीक है। अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। किसकी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज, ठीक है, जो भी स्पीसीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज पर with respect to time, you must say, with respect to time is known as the rate of a chemical reaction. Means if suppose I am talking about a reaction A gives B, ठीक है, तो A का मतलब क्या है, A is a reactant and B is a product over here. So if I am to talk about the rate of reaction, so I may whether talk about the reactant, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट भी बात कर सकती हूँ, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो ए रिएक्टेंट है और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, बी एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, तो मैं ए के प्रोडक्ट रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ, बी के रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ। मीन्स आई में से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू change in molar concentration upon change in time, ठीक है, change in molar concentration upon change in time। नाउ अगर मुझे बात करनी है विद रेस्पेक्ट टू ए मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, तो जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। सो आई में ऑल्सो से रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए में कैसे कह सकती हूँ, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। आई कैन राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस of A is equal to del A upon del T। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए वर्ड का यूज मैं यहाँ करूंगी। अब हमें क्या याद रखना है कि अगर हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात करते हैं तो एक नेगेटिव साइन जो है वो मार्क करते हैं, और जब हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा अपीयर होता है, ए हमारा जो है रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होने लगता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन रहता है, और इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल पार्ट की। अब बात कर रहे हैं हम क्यों यहाँ नेगेटिव मार्क कर रहे हैं, क्यों यहाँ पॉजिटिव मार्क कर रहे हैं, है ना। तो आप ये मानेंगे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि रेट नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ए का रेट नेगेटिव में आ रहा है, रेट किसी भी चीज का नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज जो आता है, रेट जो होता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता। नेगेटिव का मतलब है यहाँ डिसअपियरेंस से, डिसअपियरेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ नेगेटिव साइन मार्क करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है बी का, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन मार्क करते हैं। एक तो तरीका ये याद रखने के लिए। दूसरा हम इसको कैसे समझ सकते हैं, फर्दर हम फिर से ए और बी की बात करेंगे, ठीक है।
हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, अगर आपको ध्यान हो तो हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम में इसको एक्सप्लेन करते थे, कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए व्हेन T इज इक्वल टू 0, मैं मान के चल रही हूँ जो मेरा A रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है A। जब टाइम 0 होता है यानी स्टार्ट नहीं हुई है हमारी रिएक्शन, तब हमारी कंसंट्रेशन केवल किसकी होती है, A रिएक्टेंट की। और जो हमारा B होता है प्रोडक्ट, वो कैसा हो, कितना होता है, 0 होता है। नाउ आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T हम कहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा, ठीक है। सो मेरी कंसंट्रेशन अब कितनी रह गई, A की, A माइनस एक्स। अब अगर इसकी x कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है तो इसकी x फॉर्म हुई होगी, ठीक है ना, तभी तो हुई है। नाउ इट्स कंसंट्रेशन वुड बी x। टाइम 0 पर कंसंट्रेशन A थी और इसकी कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन आफ्टर टाइम t क्या रह गई, इसकी कंसंट्रेशन रह गई A माइनस एक्स और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, x। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना हो, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दोनों ही केसेस में निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोनों को क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स चेक क्या ऐसा हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। तो मैं यही तो बोलूंगी ना, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मेरी फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, सो लिख देते हैं, चलो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम भी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही तो निकालोगे ना आप, चेंज यही तो निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। सो फाइनल कंसंट्रेशन मेरी क्या है, A माइनस एक्स, और इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी क्या है, A माइनस करना है। टाइम में मेरा क्या चेंज हुआ, टाइम मेरा अब आ गया T, और पहले क्या था, व्हेन टाइम वाज 0 तो T माइनस 0, इसे मैं T2 माइनस T1 भी कह सकती थी, तब हमारा डेल T आ जाता है ना। सो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन टी, ठीक है ना, माइनस एक्स अपॉन टी। और मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन माइनस आ रहा है, जबकि मैंने आपसे कहा कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पहले से ही माइनस साइन आप डिसअपीयरेंस को दिखाने के लिए ले लोगे। यानी अगर मैंने इसको पहले से माइनस दिखा दिया तो ये माइनस माइनस वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई, क्योंकि हमारा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो व्हाट वी कंक्लूड, जब भी हमें डिसअपीयरेंस की बात करनी है तब हमें नेगेटिव साइन पहले से ही मार्क कर देना है, ठीक है। जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वुड बी नेगेटिव del A upon del T, यानी change in molar concentration of the particular reactant upon change in time। तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में बात हो गई, A के रेस्पेक्ट में। When we are talking about with respect to B, जब हम B के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसी तरीके से निकालेंगे, यानी del B upon del T, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, ठीक। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, x माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम क्या है मेरा, t माइनस 0, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरी, x अपॉन t। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। यस, यही कह सकते हैं ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप दोनों के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। एक के केस में आप डिसअपीयरेंस लगाओगे और दूसरे के केस में आप अपीयरेंस लगाओगे। डिसअपीयरेंस के केस में आप नेगेटिव साइन मार्क करोगे और अपीयरेंस के केस में आप पॉजिटिव साइन यहाँ पर पहले से, ये मतलब जहाँ नहीं है साइन वहाँ पॉजिटिव है, आप चाहें तो पॉजिटिव यहाँ मार्क भी कर सकते हो दिखाने के लिए। दैट इज अबाउट द अपीयरेंस। और ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यानी रेट चाहे आप उससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो,
सेम आएगा. These both would be the equal quantities. Rate would be equal in both the cases. Now ये तो हो गई एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन की बात. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था. हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं उस रिएक्शन में जहाँ के कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, है ना. बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक, हम पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वो आंसर आ गया. जैसे कि हमने पहले नेगेटिव साइन रख लिया, उसके बाद उसको प्रूव किया कि हम नेगेटिव वहाँ क्यों मार्क करते हैं. ठीक है ना. उसी तरीके से यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको बता रही हूँ. लेट्स सी द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3. आपसे एग्जाम में पूछा गया विद रेस्पेक्ट टू दिस टेल द रेट. ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप रेट कैलकुलेट करो. सो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने जैसे कि कहा आपको कि आप रिएक्टेंट के बेसिस भी बता सकते हो और प्रोडक्ट के बेसिस भी बता सकते हो. यहाँ रिएक्टेंट क्या है? 2 रिएक्टेंट है और 1 प्रोडक्ट है. तो आप इस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो और प्रोडक्ट में इसके रेस्पेक्ट में बताओगे. नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है. होता क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? सीधी सी बात है भाई, हम रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो यहाँ नंबर आ जाते हैं, बैलेंस करने के बाद, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इतनी बात तो हमने सीख ली कि जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, है ना. यही लिखेंगे ना, अपॉन डेल टी. अब डिसअपीयरेंस दिखाने के लिए आप क्या करोगे? नेगेटिव साइन मार्क करोगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन आई में कैलकुलेट लाइक दिस: चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम. दैट वुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में निकालूं, सेम आनी चाहिए. दैट वुड बी डेल ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल टी. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? यहाँ है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. प्रॉब्लम ये है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ध्यान रखेंगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको आप अपॉन में ले आते हैं. यानी 3 है तो इसको यहाँ 1/3 लिख दीजिए. अब क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो एक नेगेटिव का साइन यहाँ पर मार्क करेंगे. ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन है. माइनस 1/3 डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल टी वुड बी इक्वल टू, अब मुझे बात करनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के रिगार्डिंग. ठीक है ना. सो अपीयरेंस में तो पॉजिटिव साइन ही आता है. आई से डेल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज अपॉन टाइम चेंज. नाउ मैंने कहा ना जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको आप अपॉन में ले आइए. तो 2 है यहाँ पर, तो उसको आप क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे. ठीक है ना. अगर यहाँ हाफ होगा, अगर सपोज यहाँ हाफ होता तो आप क्या करते? 1/2. 1/2 का मतलब ये 2 ऊपर चला जाता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई होता उस केस में. दैट यू आर टू रिमेंबर. ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो. आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसंट्रेशन इसकी दे रखी होगी, आपको फॉर्मूला में लगाना है, वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है. लेकिन सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन के लिए ये तो याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई कि आपके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आप अपॉन में लगा दीजिए, आपका आंसर सही आएगा. ठीक है, बट हाउ, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? सो अगेन वी विल स्विच टू इक्विलिब्रियम. हम इक्विलिब्रियम पे फिर से आएंगे. फिर से ये रिएक्शन लिखते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3. स्टोइकियोमेट्री से हमें क्या पता चलता है? दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया. यही तो पता चलता है. सो लेट्स सी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0. जब टाइम 0 है, आई सेड कि इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी कंसंट्रेशन B है, एंड व्हाट अबाउट इट्स कंसंट्रेशन वुड बी 0. ठीक है. आफ्टर टाइम T, अब टाइम क्या हो गया? आफ्टर टाइम T. मैंने कहा T टाइम के बाद मैंने चेंज देखा. व्हाट आई सेड? आई से कि A - x हो गया. इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? A - x. ठीक है. एंड आपको ध्यान रखना होता है इस तरीके से लगाने के लिए, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना होता है आपके
जो कंजम्पशन हो रहा है उसमें से, यानी यहाँ पर 1 था तो मैंने x रहने दिया है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ -3x करूँगी मैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल है इसके। सो आफ्टर टाइम t इसका कंजम्पशन कितना हो गया x, तो ये कंसंट्रेशन मेरी रह गई a-x, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका कंजम्पशन ऑब्वियसली 3x होगा, और क्योंकि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाता है तो इसका प्रोडक्शन कितना होगा 2x। इज इट ओके? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ठीक है, दैट आई एम टू कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ, सबसे पहले नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में रेट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, सो a माइनस x माइनस a अपॉन चेंज इन टाइम t माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 0 टाइम था बाद में t टाइम हो गया। क्या आंसर मेरा कैलकुलेट होके आ गया, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, -x अपॉन t, और मैंने इसलिए कहा कि पहले से हम माइनस लगा के चलते हैं जिससे कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, यानी इसके आगे मुझे माइनस लगाना है, जब इसके आगे माइनस लगाऊंगी तो यहाँ भी माइनस लगाऊंगी, और जब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दैट वुड बी इक्वल टू x अपॉन t, ठीक है ना। अब मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालती हूँ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मैं पहले से ही यहाँ नेगेटिव साइन लगा ले रही हूँ, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। So let's see, change in concentration of hydrogen upon del T, इसका वैल्यू जब मैं लगाऊंगी, जब इसका वैल्यू मैं लगाऊंगी तो चेंज क्या हुआ, B माइनस 3x इज फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन B है मेरा, चेंज इन टाइम इज T माइनस 0, सो B से B कैंसिल हो गया और माइनस साइन पहले से ही है, तो मेरा आंसर आ रहा है 3x अपॉन, क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 3x अपॉन t। अब मैं इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करती हूँ, अमोनिया के रेस्पेक्ट में, सो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, अपीयरेंस हो रही है, सो आई से डेल ऑफ अमोनिया डेल t इज इक्वल टू, आई सेड फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2x माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, यानी आंसर आ गया 2x अपॉन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं रेट चाहे किसी भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं या प्रोडक्ट के केस में, सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। लेट्स, यहाँ आ रहा है x अपॉन टी, यहाँ आ रहा है 3x अपॉन टी, यहाँ आ रहा है 2x अपॉन टी, ये तो तीनों से डिफरेंट आ रहे हैं, सो वी हैव टू इक्वलाइज देम, इक्वलाइज देम, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, x बाई टी आ जाएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर x बाई टी आ जाएगा। आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, x बाई टी विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, क्योंकि वहां कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। हमने क्यों बाई 3 किया, क्योंकि बाई 3 करके ही हमारी वैल्यू x बाई टी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ है, सो वी आर टू डिवाइड इट बाय 3, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 1/3 लिख दिया था, जिससे कि इसका रेट और इसका रेट सेम है, इक्वल है। इन द सिमिलर मैनर ओवर हियर आल्सो, यहाँ पर भी क्या है हमारा x बाय टी आना है, 2 से डिवाइड करोगे तब आएगा। So what I mean to say? I mean to say is कि आपका रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से किसी के रेस्पेक्ट में भी आप कैलकुलेट करो, इक्वल आएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक, जब आप रिएक्टेंट के केस में रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, रीजन बता दिया मैंने, पूछा नहीं जाता है बट यू मस्ट बी क्लियर, आपको पता होना चाहिए। सो नेगेटिव साइन आप यहाँ मार्क करते हैं, सिग्निफिकेंस आपसे पूछी जाती है तो आप सीधे सीधे यही कहते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है,
या रेट ऑफ अपीयरेंस है, दैट्स व्हाई वी आर मार्किंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, यहाँ अपीयरेंस है, पहली चीज। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा होता है तो आपको उसे नंबर से डिवाइड करना है। क्लियर है मेरी बात? तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1/3 और 1/2। सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी तक आपने कुछ नहीं किया ऐसा, केवल आपने डेराइव किया है, आपने रिप्रेजेंटेशन देखा है। अब आप ऐसी नंबर ऑफ रिएक्शंस देखेंगे उठा के बुक में से और उनकी प्रैक्टिस करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। क्यों? क्योंकि हमें इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करने हैं। बट न्यूमेरिकल से पहले अगर हम देखें तो एक छोटा सा चीज यूनिट के बारे में बात करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपके रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, डेल लगा रहे हैं, केवल डेल की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट की। लेकिन रेट भी दो तरीके का होता है, तो दोनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। टिल द टाइम यू टेक द रिएक्शंस, डू प्रैक्टिस फॉर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है इफ यू नो द राइट रिप्रेजेंटेशन। आपको यही ट्रिक ध्यान रखनी है सिर्फ कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। अगर हाफ है तो डिवाइड करोगे, है ना, 1/2 करोगे तो 2 हो जाएगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है मेरी बात? सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड वी टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।